Hello students, today we will do the summary of chapter 3 of the novel Black Beauty. So the chapter 3, The Whip. Here we came to know that the Black Beauty who was ill was getting well, and now John started teaching about new things about horses and other things to Joy, and Joy was learning everything very quickly, and this brings confidence to him also. So for this, John let Joy ride Black Beauty also. So one day, Joy was sent to deliver a letter to a gentleman's house. So while they were coming back from there to Berwick, they passed through a cruel driver who was hitting with the whip to his horses very hard. Actually, the carriage was carrying bricks on him, and it was too heavy, and unfortunately, it was stuck in the mud. So, the master or the cruel driver was hitting the horses hardly. The horses were sweat ripped, and it was not possible for them to move the cart out from the mud. By seeing this, Joy stopped and told him not to do any such thing. He should lessen the weight of the cart, and then it will help the horses to uh, take out the carriage from the mud. But the cruel driver said Joy to move away from there. So by seeing this, Joy went to the brickmaker Mr. Clay. Mr. Clay was a brickmaker whose bricks were being carried by that cruel driver. So Mr. Clay got a complaint of that cruel driver from Joy, and Mr. Clay assured him that he will not let it again. Joy should not worry about this matter. So he will tackle with the cruel driver also. So it is never good to hurt any living thing. After this, we came to know that as we know that the mistress of Black Beauty was ill, so now the doctor suggested them to leave for a warm country for 2 or 3 years. Only then the mistress will get well. So this was a shocking news for everyone. So the master started selling the horses so that they would leave the Birdwick and go somewhere else. So Ginger, Black Beauty, Merrylegs all were sold. Merrylegs was sold to Mr. Bloomfield. Ginger and Black Beauty was sold to a nearby friend, and at the last moment, Master told John that he should ride them if he need any kind of help. So Ginger and Black Beauty pulled the carriage for the last time. John jumped up, and they started moving towards the railway station. So this was the summary in English. Now let's start summary in Hindi also. So होता क्या है इस चैप्टर में कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो जैसे कि बीमार था पहले, तो ठीक होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो है उसकी हालत जो है वो काफ़ी ठीक हो जाती है। देखते देखते जो है जॉन जॉय को सिखाना शुरू कर देता है हॉर्सेस के बारे में, और इसी के साथ जो है जॉय के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जॉन जो है जॉय को ब्लैक ब्यूटी को राइड करने भी देता है। तो एक दिन क्या होता है कि उन्होंने एक लेटर जो है वो देने जाना है। लेटर देकर आते समय जब वो बर्डविक आ रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा ही क्रूअल ड्राइवर है जो कि अपने हॉर्सेस को बुरी तरह से मार रहा है, क्योंकि जो कार्ट है उनका गड्ढा जो है वो एक कीचड़ में फंस गया है। तो हॉर्सेस जैसे खींच नहीं पा रहे, क्योंकि गड्ढा जो है ईंटों से लदा हुआ है, ब्रिक्स के साथ लदा हुआ है, तो घोड़ों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो कीचड़ में से गड्ढा जो है निकाल दें। तो मास्टर जो है क्रूअल ड्राइवर जो है उनको बार बार पीटे जा रहा है घोड़ों को पसीना भी आया हुआ है, लेकिन जो
गड्ढा है वो मड से बाहर नहीं निकल रहा। तो इसको देखते हुए जो जॉय है वो रुकता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, घोड़ों को मारना नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि ईंटों का थोड़ा भार, थोड़ी ईंटें उतार दो, और जिससे जो है जो गड्ढा है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, और इसमें जो है जॉय भी उनकी हेल्प करेगा ताकि जो गड्ढा है वो कीचड़ में से बाहर आ जाए। लेकिन जो कार्ट ड्राइवर है वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ से चले जाओ। ये देखकर जॉय जो है वो सीधा उस ब्रिक मेकर के पास जाता है जिसका नाम है मिस्टर क्ले। वो मिस्टर क्ले को कंप्लेंट करता है कि जो कार्ट ड्राइवर है वो घोड़ों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, वो तो उनको मार देगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस पर जो मिस्टर क्ले हैं वो कहते हैं कि ऐसा आदमी जो है मैं इसको आगे से कभी भी अपने घोड़ा भी नहीं दूंगा, अपने यार्ड के आसपास भी नहीं आने दूंगा। किसी भी लिविंग थिंग को, जिंदा चीज़ को जो है दुख देना अच्छी बात नहीं है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो हमें मालूम पड़ता है कि जो जैसे पहले पता ही है कि जो ब्लैक ब्यूटी है इसकी मिस्ट्रेस जो है मिसिस केयरगॉर्टन वो बीमार रहती हैं, डॉक्टर भी उनको डेली देखने आता है। तो होता क्या है कि जो डॉक्टर है उनको सलाह देता है कि आपको जो है कहीं बाहर गर्म जगह पर घूम कर आना चाहिए ताकि जो है मिस्ट्रेस की हालत जो है वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि मैरीलैक जो है वो मिस्टर ब्लूमफील्ड को दे देते हैं और जॉय को भी उसी के साथ भेज देते हैं। उसके बाद जिंजर है, ब्लैक ब्यूटी है, इसको जो है वो एक पास के ही फार्म में एक दोस्त के पास ही बेच देते हैं और आशा करते हैं कि दोनों जो हैं वो अच्छे से रह लेंगे वहाँ पर, ब्लैक ब्यूटी और जिंजर। जाते जाते जो स्केयरगॉर्टन है वो जॉन को कहता है कि तुम मुझे चिट्ठी लिख देना अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए। इसके बाद लास्ट टाइम जो है जिंजर और ब्लैक ब्यूटी जो है उस कैरेज को खींचते हैं, डोर के पास लेकर जाते हैं। जॉन जो है कैरेज के ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। So this was a summary of chapter 3 in English and Hindi as well. Thanks and have a nice day.